services, women access to basic services and government facilities. गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। थर्ड वन, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज, and alternate transport system, upgrading energy use and alternative transport system. Fifth, reducing air pollution. ठीक है, दिस इज द अर्बन स्ट्रेटेजी हु हैज गिवन यूएनडीपी दैट व्हाइल ड्यूरिंग एनी प्लानिंग, अगर आप कोई सिटी, अच्छा प्लान सिटीज वर्ड आता है तो व्हाट डज इट मीन, अगर कहीं प्लान सिटीज भी अगर हम एग्जांपल में लेंगे कि व्हाट आर प्लान सिटीज, एनी एग्जांपल कैन यू रिमेंबर प्लान सिटी इंडिया के रिस्पेक्ट में? चंडीगढ़ इज अ प्लान सिटी, देन ग्रेटर नोएडा, हाँ बेंगलोर लिटिल बिट, इट इज नॉट फुली प्लान, ठीक है। अगर प्लांट होता तो उसमें वाटर क्राइसिस नहीं आते ऐसे, ठीक है। इट हैज एनवायरमेंटल इश्यूज राइट नाउ। चंडीगढ़ इज अ प्लांट सिटी, वी कंसीडर चंडी सेक्टर वाइज डेवलप। ये जो ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ है ना, जिसमें प्रॉपर सेक्टर्स डिवाइड हुए हैं, so that these are planned cities. So UNDP has given what urban strategy should be there. Suppose a planning is done for an area, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये प्लानिंग करती है ना पूरे एरिया की, दिल्ली की एनसीआर की। So what should be strategy? What basic necessities it should have? First, shelter for the urban poor. कोई भी आता है poor तो उनके लिए shelter जरूर होना चाहिए। Second, what basic services available होनी चाहिए, like education, primary health care, ठीक है, clean water and sanitation. These are what basic necessities of any human individual. Third, cater to the women needs, ठीक है, women need special care, ठीक है, तो उनके लिए access to basic services and facilities. Fourth, energy, मतलब what type of energy we are using in that urban area, ठीक है। Now we are turning into green lighting and all, है ना, energy efficient technology we are using, renewable energy की तरफ जा रहे हैं। Houses are built such a way so that in daylight you don't need to use this lights, okay, सूरज की रोशनी से ही दिन में रूम में काम चल जाए, ठीक है, रेटिंग सिस्टम। Then fifth one is reducing air pollution. Air pollution सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, because of that what will happen? Global warming is happening, है ना। So proper mechanism should be developed. So that is called urban strategy. Is it clear? Okay. Any doubts? Rural and urban settlement clear हो गए? कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलो, एक कल होमवर्क दिया था मैंने, I gave homework or not yesterday? किसी ने लिखा है? आप अलग से अच्छा चलो बताओ, कल बोला था मैंने, कौन सा क्वेश्चन दिया था एक बार याद है, बोलो। ओके हाँ ठीक है, आप सबमिट करोगे, आप भी बताओगे क्या क्या लिखा, पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स क्या लिखे, किसी और ने लिखा है? एनीवन एल्स इज रिटन? नो नॉट रिटन, हाँ रिटन, ओके। So what points you have written, major points, what trends you have highlighted? Okay. And you have explained internal and external migration. Pragya, what you have written? हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ ओके ओके अच्छा अच्छा ठीक। एनीवन एल्स, किसी और ने ट्रेंड्स लिखा है इसके बारे में? ट्रेंड्स, व्हाट आर द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इंडिया, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड? चलो, यू गिव मी योर शीट, मैं आपका चेक कर दूंगी, ठीक है। अच्छा कॉपी में है, चलो मैं बाद में कल दे देना, ठीक है, कॉपी में मुझे दूंगी, ठीक है। चलो, नाउ दिस अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट सेक्शन इज कंप्लीट, ओके। वन होमवर्क, यू राइट वन क्वेश्चन, ठीक है। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया,
cannot sustain without smart villages. Smart cities in India cannot sustain without smart villages. Discuss this statement. Smart cities in India cannot sustain without smart villages, full stop. Discuss this statement in the backdrop of rural urban integration. Rural urban integration, ठीक है, ये आप लोग discuss this statement in the backdrop of rural urban integration. Okay, you will have to write it in a sheet, ठीक है, sheet of paper, and you will submit it tomorrow. ठीक है, ये वाला आंसर. And Monday I will be taking a test, Indian geography का. Okay, 1 hour test. It could be a mains also, or it could be subjective also, objective also. तीन बचे होंगे, कल और 2 और होंगे, ठीक है. ह्यूमन ज्योग्राफी फिर कंप्लीट हो जाएगी. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस फेयर्स ऑफ ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, देन उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होगी और ये ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो गया, ठीक है. चलो, ये ह्यूमन सेटलमेंट कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रेड वाला सेक्शन. ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. लीव वन स्पेस, देन यू स्टार्ट अनदर, ठीक है. अगर कोई फ्यूचर में डेटा वगैरह आता है, जैसे हमने NFHS का डेटा किया था, तो वो जरूर आप याद रखना. इंपॉर्टेंट कोई रिपोर्ट्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी, एनी डेटा विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग रिलीजेस, ओके, गवर्नमेंट रिलीजेस, हेल्थ डेटा और एनी रिपोर्ट, ठीक है, दैट यू विल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट. Understood? How you will prepare notes, how we will keep updating this. Census आता है तो उसका डेटा आप accommodate करोगे, and any further reports by नीति आयोग, because it is valid in every exam. नीति आयोग के अगर कोड करके आप लिखते हो ना, नीति आयोग के रिपोर्ट में ये चीज कही हुई है, then it enhances your answer. Okay? So trade. What does it mean? Trade. Trade means what? What does this word imply? हाँ? Buying and selling. एक्सपोर्ट एंड, जिसमें सिंपल वर्ड्स क्या है, बाय, यू बाय और इधर सेल, ठीक है. देयर इज द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज देयर, अनदर थिंग दैट इज इंपोर्ट. दीज आर द 2 वर्ड्स. तो ये शुरुआत कैसे हुई थी ट्रेड की? व्हाई पीपल बाय एंड सेल? व्हाई? व्हाट इज द नीड? टेल मी. हाँ, यू आर टेलिंग इट राइट. On some scarcity of resources, and you, okay, and why we do trade? अब क्यों, जैसे initially what was happening? Have you heard this word barter system? What was happening in this? Anyone? Barter system में क्या होता था? What was, there was a need, दोनों की कुछ ना कुछ जरूरतें होती थी. If I need one notebook, you need another notebook, what we will do? We will exchange it. If I am good at drawing, है ना, if I can draw better and you can either sing better or you can anything, you can make better, you can make good food, ठीक है. अगर मैं कुछ आपको, वो पहले क्या होता है, ये मॉनेटरी करेंसी नहीं होती थी, दिस प्लास्टिक करेंसी वाज नॉट देयर, ओके. अर्लियर गोल्ड, इनिशियल टाइम, पहले की बात हम कर रहे हैं जब ये रिफाइंड फॉर्म नहीं था ट्रेडिंग का. देन व्हाट पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज द थिंग्स. पहले राजा महाराजा नहीं कहते थे इसके बदले ये ले लो, इन काइंड, इट इज कॉल्ड इन काइंड. इन काइंड एंड कैश का वर्ड सुना है, इन कैश और काइंड. Cash means monetary, in kind means something equivalent to that value. Suppose I have made something good dish, and you have made something good pottery and all. So we will exchange with respect to them because there is a need of want. ठीक है, something why it arises, because the resources are, why the trade generate, because resources, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा, resources are unevenly distributed. Unevenly distributed or not? Is it true or not? This statement, is it true? Suppose what type of resource? This is India, ठीक है. What type of resource this region? This is Chota Nagpur Plateau. What type of resource this region has? ये हजारीबाग वाला region. What type of resources this Salem? What type of resource this Bangalore has? They are all different. यहाँ पे क्या अवेलेबल मिनट, यहाँ पे अलग तरीके के सॉइल है, यहाँ पे अगर हम ये नॉर्दर्न प्लेन वाला देखें, what type of resource this region has? Think. अभी हम इंटरनल ट्रेड की बात करें, इंडिया में ही देख रहे हैं, ठीक है. जरूरतें इंटरनल नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है.
what is scarce and what is excess in these regions? This is Chota Nagpur, Hazaribagh wala plateau, Jharkhand, Chhattisgarh. What is maximum here? Coal, मतलब industrial, what you said? Iron and steel. You, coal was there, तो यहाँ पे mineral resources बहुत ज़्यादा है. Excess of mineral resource or not? Like iron is there, coal is there, metals, many metals we studied, है ना. बार बार कहाँ का नाम आ रहा था? हजारीबाग का नाम आता, झारखंड का नाम आता, भेलाडीला माइंस, ये सब माइंस में झरिया, बोकारो बार बार आ रहे थे. Then next, what is Bangalore famous for? Bangalore, Andhra. Not a resource term, any other term also. IT sector, human resource is very skilled. Human resource है कि नहीं? Skilled resource है. स्किल्ड है कि नहीं? यहाँ की ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड है. वहीं आप यहाँ पे देख लो बिहार में एक्सेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एक्सेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नॉट. यहाँ पे क्या डबल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, बट इट इज अनस्किल्ड. So what they were doing? They were traveling to this location for work and employment. So there many factories are here. यहाँ पे क्या है? फैक्ट्रीज हैं, है ना. यहाँ पे भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है. यहाँ पे भी रबर प्लांटेशन, कॉपर प्लांट, बहुत तरह के प्लांटेशन है. बैंगलोर में भी लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे भी काफी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं. सो सिंपल यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे? कहीं पे कुछ रिसोर्सेज हैं, कहीं पे कुछ रिसोर्स. अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारा हमारा फूड होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. यस और नो? So food is produced here, it will be sold to other states or not for their requirement. सिर्फ यूपी तो अपने आप में कंज्यूम करेगा नहीं, पंजाब में they will sell to other states also according to their requirements. गवर्नमेंट में बाय करेगी पीडीएस के लिए, है कि नहीं? So it is excess here, it will be transferred to other place. Trade will happen within the states also and with respect to state and center also. Suppose this maximum of यहाँ पे टाटा स्टील वगैरह जनरेट हो रहा है, कोल जनरेटर, तो जरूरी नहीं कि सारा यहीं पे कंज्यूम हो रहा है कि नहीं? It is being transferred to different parts of the country or not? So what is it is enhancing? So this shows, what it shows? There is uneven distribution of human resource, uneven distribution of resources. In resources there are all types of human resource भी आ जाएगा, physical resources भी आ जाएगा, coal, mineral, टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बैंगलोर कितना IT हब है, ठीक है. गुजरात वगैरह, अगर मुंबई वाला ये रीजन हम देखेंगे, मुंबई सूरत वाला, that is called fashion hub of India. दिल्ली आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है. तो each region has its importance or not? ठीक है. दिस इज रिस्पेक्ट टू इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग. हम अपने काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मैं अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, ठीक है. आप लोग अपने शहर छोड़ के आए हो, व्हाई? बिकॉज यू वांट टू अर्न समथिंग, ठीक है. यहाँ पे क्या हमारी नीड्स सेटिस्फाई होंगे. बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, व्हाट हैपेंस? द नीड्स गेट सेटिस्फाइड. इसको और इलेबोरेटली इकोनॉमी भी होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, नीड ऑफ वांट्स, जो कॉन्सेप्ट है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये वर्ड आपने सुना होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस मतलब सपोज ए हैज समथिंग एंड बी हैज अनदर थिंग, ठीक है. सो बोथ विल एक्सचेंज. इसको भी कुछ जरूरत है और इसको भी जरूरत है जो इसके पास है, तो ये इसको दे देगा, ये इससे ले लेगा, ठीक है. दिस वर्ड यूजुअली कम्स विद इन इकोनॉमी आल्सो, और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी यू कैन यूज इट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब बोथ द पीपल आर हैविंग सम वांट्स, दे नीड समथिंग एंड द अदर पीपल हैज दैट. Okay, so they will exchange it. Okay, so this is how the trade develops. Similarly, if you can relate with the world, इंडिया के पास क्या रिसोर्स में बहुत ज्यादा और बहुत कम है. दो चीजें अगर आप याद कर पाओ, कुछ रिसोर्सेज इंडिया के पास एक्सेस है, कुछ रिसोर्सेज इंडिया के पास बहुत स्कैर्स है. So it will trade with other country or not? Think anything you can relate. Suppose India, what India has? India has not much gold. It has scarce gold. So it has, there is a scarcity of gold, but there is so much demand. ठीक है. So we will, world से what we will do? We will ask the world to give us, import कराएंगे, है ना. गोल्ड स्कैर्स है. We have huge resources of thorium. थोरियम के एक्सेस रिसोर्स है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव. थोरियम के ह्यूज रिसोर्स, देन वी विल सेंड इट टू दी वर्ल्ड. ठीक है. इज इट हैपनिंग द सेम थिंग और नॉट? वी नीड गोल्ड बिकॉज वी लाइक टू वेयर गोल्ड ज्वेलरी, तो हम बाहर से मंगवाएंगे. रिफाइनरीज, इंडिया में कोल नहीं है बट रिफाइनरीज हैं. सो हाउ इट इज वर्किंग द मैन? इंडिया क्या रहता है? क्रूड ऑयल मंगवाता है. वर्ल्ड से क्या करता है इंडिया? इट विल टेक द क्रूड ऑयल
India will what it will do? It will refine. India earns huge like this, ठीक है, refine करके and it will send it to other parts of. Understanding this, how the trade happens, this has generated the need for trade in the world, ठीक है. Suppose we need to higher education के लिए लोग कहते हैं हमें बाहर ही पढ़ना है, इंडियन यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ता, go for higher studies in US, ठीक है, US, UK abroad for better studies, yes or no, for better technology and all. अब ठीक है, सो दिस इज व्हाट ट्रेड ओरिजिनेटेड. सबसे पहले ट्रेड की बात किस रूट से कही जाती थी वर्ल्ड में? सिल्क रूट की, है ना. अच्छा, इट्स सिल्क. व्हाट इज सिल्क रूट? किसी को पता है इसके बारे में कुछ भी? द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली. इट वाज अराउंड 1600, ठीक है. वेयर दिस वाज हैपनिंग, वर्ल्ड का कौन सा पार्ट में ट्रेड हो रहा है? मैप से क्या दिख रहा है? कहां से कहां तक जा रहा है? कौन सी सी है ये मेडिटेरेनियन. ये कौन सी सी है? ये क्या है? ब्लैक सी. एंड विच इज दिस वन? दिस इज नॉट रेड सी. ये क्या होता है? आर्कटिक सी है, एड्रियाटिक. मैप जरूर देखा करो. ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक सी हो गया, उसके बाद एजियन हो गया, एड्रियाटिक, आयोनियन कराया था ना मेडिटेरेनियन में. लुक हियर, दिस इज मेडिटेरेनियन, दिस इज एड्रियाटिक, दिस इज एजियन, दिस इज ब्लैक सी. उसके पास में कैस्पियन, ठीक है. तो ऐसे आप रिलोकेट करो. यहाँ ये इंडियन ओशन तो पता होगा, साउथ चाइना सी, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज रेड सी, ठीक है. सो ट्रेड अर्लिएस्ट ट्रेड वाज हैपनिंग दिस चाइनीज पार्ट. यहाँ से घूमता घूमता लोग क्या कहते हैं, ये हिमालय, हमारा इंडिया वाला रीजन आ गया, हिमालय इंडिया. देन इट वाज ट्रैवलिंग टू, इट वाज क्रॉसिंग सो मच डिस्टेंस, ठीक है. सिल्क रोड अराउंड 6000 किलोमीटर. इट वाज अराउंड 6000 kilometers long trade was happening because China has बहुत high quality silk it has, so it was trading its silk to western world, ठीक है. That's why it is referred to as silk route because a lot of silk, अभी भी क्या करो, चाइना में बहुत अच्छी तरीके के सिल्क होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा होगा. किसी वजह से सिल्क, क्यों सिल्क पड़ा? बिकॉज इंडिया से भी बेटर क्वालिटी के सिल्क कहाँ मिलते हैं? चाइना में. सो चाइना वाज ट्रांसपोर्टिंग इट टू दी अदर वर्ल्ड, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड टू एज सिल्क रूट. दिस इज द ओल्डेस्ट रूट दैट ह्यूमन स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड, ठीक है. चलो, राइट डाउन हेडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और ट्रेड शुरुआत करेंगे. It is the result of, write down international trade heading written. It is the result of specialization in, it is the result of specialization in production, full stop. It is based on the principle of, it is based on the principle of comparative advantage, ठीक है, comparative advantage and transferability of goods and services. It is based on the principle of comparative advantage and transferability of goods and services, and should in principle comma be mutually, and should comma in principle comma be mutually beneficial to the trading partners, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हमने देखा? कंपेरेटिव एडवांटेज. वर्ड व्हाट डज इट मीन? कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब किसे पता है? आई टोल्ड अ वर्ड ना, कंपेरेटिव एडवांटेज. व्हाट डज दिस वर्ड इम्प्लाई? कंपेरेटिव एडवांटेज. अभी एक वर्ड बोला ना हमने,
Internet is based on the principle of comparative advantage. Suppose A can produce a commodity. यहाँ पे हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन पे बात कर रहे हैं. The cost of production here is 20 rupees. Suppose I can produce a good with respect, कितना कॉस्ट उसका पड़ रहा है? 20 रुपए. एक और कंट्री है B, उसको प्रोड्यूस करने में व्हाट इट विल हैव 50 रुपीज लग रहे हैं, वहां पे रिसोर्सेज नहीं इंपोर्ट करके बना रहे हैं. सो व्हाट, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट विल ट्राई टू गेट इट इंपोर्टेड फ्रॉम दी अनदर. ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज समझ में आ रहा है. अगर कोई भी इंडिया है, वो चीज को इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है बेस्ट, मान लीजिए इंडिया में हम देख लें मिल्क देते हैं, इंडिया प्रोडक्शन क्या है? मिल्क में सबसे अच्छा. ठीक है, इंडिया के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क आता है. ठीक है, कंज्यूम भी मैक्सिमम कंज्यूमर भी है इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ इंडिया को उठाएगा. ठीक है, एंड अनदर कंट्री सपोज जापान. ठीक है, इट डजंट, उसके वहां वैसे फर्टाइल लैंड नहीं है, इट डजंट हैव द टेरेन टू कल्टीवेट और हैव फीड दिस काउज एंड बफेलो. सो व्हाट विल हैपन, जापान के पास टेक्नोलॉजी है. चलो अभी कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं. मिल्क, ये यहाँ पे इसको अगर मिल्क प्रोड्यूस और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में इंडिया क्या लगाता है? हाउ मच इज द कॉस्ट? 100 रुपीज. ठीक है, and similarly in rupees term Japan has to employ 150 rupees or approximately 200 because terrain is not very good, it is earthquake prone, volcanoes prone, cows and buffaloes cannot survive, वहाँ पे proper grasses नहीं मिलेंगे, है ना. So what it does is usually imports India से. So instead of having cows and buffalo in its country, it will import milk products from this India only. So this is comparative advantage that India has with respect to Japan. अंडरस्टूड दिस वर्ड कंपेरेटिवली. अगर मैं इस काम को 1 घंटे में करके आपको दे रही हूँ और आपको 3 घंटे लग रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि इसी से करवा लेती हूँ मैं, है कि नहीं. मैं अपने 3 घंटे क्यों वेस्ट करूँ, 1 घंटे में काम खत्म कराते हैं. कि उसी तरीके की जरूरत है मेरे को इसे कहीं पे, जैसे आप ट्रैवल करते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो जहाँ पे आपको बेटर पैसे मिल जाता है ना, बेटर प्राइस में गुड्स मिलते हैं, तो यू प्रेफर दैट ओनली. और कहीं पे आपको सीपी जाओगे और कहीं लाजपत चल जाओगे, तो यू वांट टू गो टू लाजपत ओनली, है ना, है कि नहीं. नॉर्मल ह्यूमंस की हम बात करें इंडिया में जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, सो इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम सीपी इट विल बाय फ्रॉम लाजपत नगर और सरोजनी. इट विल गेट बेटर क्वालिटी, मतलब बेटर क्वालिटी और मेनी वैरायटीज यू विल गेट. So this is like comparative advantage. Instead of going to CP, you will prefer to go to Lajpat. ठीक है, समझ में आई ये चीज. comparative advantage उतनी सेल सीपी में नहीं होती होगी जितनी लाजपत या सरोजनी में हो जाती है. ठीक है, so that advantage they have. चलो नेक्स्ट हम देखेंगे basis of international trade. क्या बेस होता है इंटरनेशनल का? व्हाट आर दी स्पेसिफिक बेसिस? राइट डाउन बेसिस. Basis of international trade. What is the base on which international trade is dependent? What are the factors or you can consider? Ocean, मतलब geographical factors one. ठीक है, that is a major word. You can write land, river, sea, anything in that. And okay, wait. Now, Lisha, you will tell 2 things. What are the things? Think of it. What are the basis of international trade? Resources that will come in geographical, right? Mineral resources चलो मान लिया. और थिंक एनीथिंग यू थिंक. कुछ भी आ रहा है दिमाग में बोलो उसे. किस बेसिस पे तुम अगर ट्रेड करना चाहोगी, आप खुद ट्रेड करना चाहोगे किसी के साथ, तो क्या चीजें वहां पे देखोगे? आप जाके मान लीजिए चाइना में ट्रेड करना चाहते हो या फिर यूएसए में ट्रेड करना चाहते हो, व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसिडर देयर? हाँ, ओके, हाँ, इकोनॉमिक. फर्स्ट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और नॉट मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इट हैज. ठीक है, it determines. Suppose we studied in the Indian geography, geographical base, Hardian Archean era determine what type of resource and area will have. ठीक है, अगर ब्राजीलियन शेल्ड है, हमारा ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, more resources. छोटा नागपुर प्लेट्यू है, that has more resources. The geological structure or formation of the earth also had great impact on this
इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जिस कंट्री के पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल है दैट विल उसके ऊपर अपर हैंड होता है कि नहीं। चाइना के पास कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी है, रेयर मिनरल्स। ताइवान के पास छोटा सा कंट्री है बट उसके पास रिसोर्सेज है, सिलिकॉन का रिसोर्स है, इट हैज एन अपर हैंड ओवर द अदर कंट्रीज। ओके, तो फर्स्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेकंड यू कैन हैव मिनरल रिसोर्सेज आल्सो यू कंसीडर। While basis of trade, while doing, you will consider climate or not? Climatic factors, ठीक है। Population factors also, कहाँ पे, अब देखो population इंडिया में ज्यादा है तो we have a large market or not with respect to trade, so population is also a major factor with respect to trade। आप खुद अपने आप को एज ए ट्रेडर रखो और फिर बताओ क्या होगा। Population factors, then in that you can write cultural factors। What, how cultural factors is related to trade? यहाँ पे population और उसका size and all everything will matter, okay? Type of, बताओ कुछ सोचो इसके बाद cultural factors कैसे होगा? हाँ ठीक है, मतलब एक में कल्चर मतलब जैसे मान लो इंडिया क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेड रिलेशन। अगर दिवाली के टाइम आप देखोगे दिए, पहले क्या था चाइनीज लाइट लगाते थे, बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द मूड ऑफ द पीपल आल्सो। अब क्या करते हैं, चाइनीज लाइट्स ना लगा के वो क्या दियास की तरफ प्रीफर कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट भी या वर्ल्ड ट्रेड भी है इस चीज को नोटिस करता है कि वहां पे कंट्री में लोगों का माहौल कैसा है, मूड कैसा है। तो चाइनीज दियाज भी करके प्लास्टिक के दिए आने लगेंगे, अब वैसे आते हैं, आपने देखा होंगे मैकेनाइज्ड दियाज आर आल्सो कमिंग। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग फेरी लाइट्स पीपल विल प्रेफर कल्चरली इफ देयर इज अ मोर डिमांड ऑफ एनीथिंग। सऊदी अरेबिया में क्या अलग अलग प्लेट्स तरीके के होते हैं, प्लेट्स बनते हैं, तो डिमांड ट्रेड वैसी चीजें वहां पे भेजी जाएगी, है कि नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आल्सो विल डिटरमाइन दी व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड दैट कंट्री इज हैविंग। हम वही गुड्स भेजेंगे ना उस कंट्री में जिसकी वहां पे जरूरत हो, डिमांड हो, सिंपल है कि नहीं। एंड व्हाट एल्स, हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। एंड अनदर वन इज टैक्सेशन पॉलिसी, व्हाट आर द लॉज एंड ऑल, कितने टैरिफ कहाँ पे, आपको पता होगा टैक्स लगता है किसी भी चीज को बाहर भेजने में, कस्टम ड्यूटीज वगैरह यू विल हैव टू पे द टैरिफ्स एंड ऑल। सो टैक्सेशन एंड लॉज, आर दे कंफर्टेबल और नॉट, पीपल आर एबल टू फिजिबल, इट इज बहुत ज्यादा कम्बसम लॉज इंडिया में, इसीलिए लोग बाहर के लोग ट्रेड करना नहीं चाहते, दे हैव टू डू सो मेनी फॉर्मेलिटीज, ठीक है। देन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ रीजन, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन साइज, इसमें एक और डाल लो टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन राइट ऑल थ्री, रेल, रोड, ports. In order to do the trade, all three of mechanism you will need or not. Sea route भी चाहिए होता है, sea से सबसे ज्यादा cheapest means of transportation. Then you will require ports and all. Then you will require road, है ना? Then you write buses and all, सब कुछ चाहिए होता है for better trade. इसलिए तो गवर्नमेंट कॉरिडोर्स बनाती है ना, ताकि बेटर मूवमेंट हो। फास्टैग क्यों लाया गया? ताकि बेटर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, ठीक है। हमारे सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो ट्रेड पर्सपेक्टिव से सोच के भी लाया गया ताकि रुकना ना पड़े ट्रक्स को, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट बाय कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा, ये तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी देखा। फिर एक और आप लिख सकते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन दैट सेंस ना वेल्थ ऑफ द कंट्री, सो दैट कि कितना फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई आ रहा है, एफडीआई पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मतलब किस सेक्टर में गवर्नमेंट, पहले क्या होता बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता था कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन, यू कैन राइट एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्लोली इंडिया हैज ओपनड अप, पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट आता था जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होने लगा है इंडिया में। स्टॉक मार्केट इज बूमिंग बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव, मेनी पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन द इंडियन मार्केट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छे से हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट हैज रेज द कैपिटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बाहर से, सो इट इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, इज इट ओके। सो एटलीस्ट किसी भी टॉपिक को आप करोगे मिनिमम 5 पॉइंट्स और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आप जनरेट करके रखोगे जनरल डिस्क्रिप्टिव को टॉपिक्स को लेके, ठीक है। और इसको आप करंट डेटा से जरूर ऐड करोगे,
दैट विल ओनली फेच यू मार्क्स। सिर्फ स्टैटिक ये लिखने से नहीं होगा, यू विल हैव टू ऐड द करेंट डेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, चलो वी विल एंड इट हियर टुडे। ठीक है, थैंक यू क्लास।